ये था। Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Just a brief review from previous class. We defined properties of systems. First property was system with and without memory. So we say a system is said to be memoryless if output at any instant of time t is equal to t naught or n equals to n naught depends only on the present values of the input at the same instant. Examples was considered as an amplifier if output equals to the square of the input, and if output at any instant of time depends on the present and previous and or future values of the input at any instant of time, then we say it is with memory. First example considered was a accumulator or summer or adder, also integrator. Second type was invertibility of the inverse systems. So we say system is said to be invertible if its inverse exists. इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप एक सिस्टम नंबर वन को इनपुट दें x1 एंड आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम इज y1, then this output of the first system is considered as input of the other system, then it generates the output y2. Then if y2 is equal to x of n, then we say system is invertible. Examples बहुत सी डिस्कस हुई थी जिसमें we said that we are more interested in forms of energy. So there are two forms of energy which can be converted from one form to the other form and then to the same form. जिसमें एक sound energy थी और दूसरा हमने vision की बात की थी. And then other examples. Third property was causality. A system is said to be causal if output of the system depends on the present and or values of the input. So we generally say causal means cause or reason. तो जब तक सिस्टम को इनपुट नहीं मिलेगा सिस्टम आउटपुट नहीं देगा. Non-causal systems we say which can anticipate future. Causal systems are non-anticipative. तो नॉन कॉजल का मतलब क्या होगा, जो कि फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें. सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कॉजल सिस्टम्स रादर देन नॉन कॉजल सिस्टम्स. एक एग्जांपल हमने ली थी एवरेजिंग सिस्टम that takes the average value of the present, previous and future value. So we say this represents a non-causal system. एक ऐसा average system which only consider the previous values like your CGPA, then we say it is a causal system. Your bank account current form में हो तो causal system है. But if you say it is a profit and loss, then we say it's non-causal. बाकी प्रॉपर्टीज क्या थी, स्टेबल सिस्टम जिस पे प्रीवियस क्लास में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने टाइम लिया था. We say system is said to be stable if for bounded input it produces bounded output. So bounded का मतलब क्या था, if we say time approaches to infinity, then the value of the function x or y of t or z of t or जो भी हो, it should approach to zero or any constant say. Or n approaches to infinity, then x of n should approach to zero or any constant c. Examples एक क्या थी, output is equal to 3 times x of 2n minus 4. So इस सिस्टम में क्या है, अगर हम कहते हैं input x of n is bounded, तो अगर आप bounded input को still it remains bounded. अगर आप bounded signal press करें, still it remains bounded. प्लीज एक मिनट होल्ड करें, मैं चेयरमैन की कॉल आ रही है. Yes, sir. ओके थैंक यू. सॉरी वो चेयरमैन की कॉल थी तो इट वाज अनअवॉइडेबल circumstance. Input signal bounded
है उसको रिवर्स करके सर आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। यार सर आपकी आवाज नहीं आ रही। bounded signals. Again, we say this derivative of the input signal represents आवाज a नहीं आ रही। differentiator. जी यार सर दरमियान में आपकी पिछले एक आवाज मिनट कट में रही आपने जो भी बोला है वो हमें सुनाई नहीं दिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कट हो अभी भी नहीं आ रही। अभी आ रही है, पिछले एक मिनट में नहीं आई। नहीं, मैं तो पिछले 4-5 मिनट खामोश था ना, अभी दोबारा स्टार्ट किया है। सर जब से स्टार्ट किया उस वक्त से। अच्छा चलें दोबारा देख लें। ये सिस्टम की रिप्रेजेंट इक्वेशन है। सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम इनपुट को ले रहा है, उसको पहले 4 टाइम्स शिफ्ट कर रहा है, फिर उसको स्केल कर रहे मींस कंप्रेस कर रहे 2 टाइम्स, और फिर जो रिजल्टेंट सिग्नल बन रहा है इट इज एम्पलीफाइड 3 times. So in this case if we say x of n is input which is bounded, then output of this particular system will also be a bounded signal. So we say it represents a stable system. Similarly, in the second case, if x of n is a bounded value or bounded input, and if it's amplified with a constant value k could be 2 3 4 5 जो भी number हो, then it also represents a stable system. Again, in third case, if we say input output is equal to the derivative of input, that is a differentiator. So differentiator also represents a stable system, because if we say x of t is bounded, then its derivative is always a bounded signal. फोर्थ एग्जांपल क्या है, y ऑफ t इक्वल्स टू t टाइम्स x ऑफ t. तो अगर इस केस में हम कहें कि जी x ऑफ t बाउंडेड है where t is an unbounded value. If t approaches to infinity, output in this case will approach to infinity, because t approaches to infinity, infinity multiplied by any bounded value will result in the unbounded value. So we say it is a, this equation is basically representing an unstable system. Stable systems examples बहुत सी हैं, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारा जो अभी इंटरनेट का सिस्टम चल रहा है, तो मेरी क्लासेस में तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक स्टेबल ही है, कोई इतने मेजर इश्यूज नहीं हुए। So generally we say if a system obeys BIBO, BIBO stands for bounded input, bounded output, then we say that the system is stable. और अगर ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं होती, then we say system is unstable. Fifth property is linear systems. हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही यार, मेरे पास तो कनेक्शन तो ठीक चल रहे हैं सारे। अब सही आ रही है सर, वो इंटरनेट का कनेक्शन होगा जुल्फिकार का। बस वो घर वाला कनेक्शन थोड़ा स्लो होगा ना, ऑफिस वाला अच्छा होता है। ठीक है, चले जब मसला हुआ करे तो बता दिया करें। मैं लोकेशन भी चेंज नहीं कर सकता कि दूसरे रूम में मसला है। सो के द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लीनियर सिस्टम्स, जो प्रीवियस क्लास में थोड़ी डिस्कशन हुई थी, जिसपे we say a system is said to be linear if it obeys or satisfies the two conditions. The first one is superposition, also known as additivity, known as homogeneity. Second property is scaling or multiplication. So generally it means that if input x of t equals to x1 plus x2, then output y should be equal to y1 plus y2. This is superposition theorem basically. And if input is a times x1 plus b times x2, then output should be equal to a times y1 plus b times y2. Means input is scaled by some constant a, then output should also be scaled by the same constant a. And if the second input is scaled by constant b, it should output should be scaled by the constant b. So if these two conditions are justified, then we say system is linear, otherwise non-linear. एग्जाम्पल हमने ली थी, आउटपुट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x ऑफ 2t। तो अगर सिस्टम को इनपुट x ऑफ t दें तो आउटपुट पे क्या होगा, it will be a compressed as well as amplified input.
So we say this represents a linear system mathematically. We did it in the previous class. फिर एक एग्जांपल क्या थी कि नॉन लीनियर सिस्टम्स कौन से हैं, तो आउटपुट इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द इनपुट. इट्स नॉन लीनियर बिकॉज जी मैथमेटिकली किसी ने किया था ऐसे. So here in this case if x of n equals to x1 plus x2, तो y of n किसकी इक्वल आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2. जबकि आप इंडिविजुअली करेंगे तो x1 ऑफ n के लिए आउटपुट बनेगी y1 ऑफ n equals to x1 of square n and y2 of n will be equal to x2 square n. And similarly this second equation also represents a non-linear system. अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ी थी. That is a time invariant system. A system is said to be time invariant if input signal is shifted by the time t naught or n naught, then the output must be shifted by the same amount. अब नाम से जाहिर है, पहले थोड़ा सा इसको जनरली डिस्कस कर लें. टाइम इनवेरिएंट जो कि टाइम के साथ वेरी ना हो. अब अगर आप एग्जांपल्स यहाँ से देख लें, मैथमेटिकली बाद में देखते हैं. इफ बैटरी टाइमिंग्स ऑफ से योर मोबाइल फोन्स, laptops or any other thing are changing with time or not changing with time, then we say they are time invariant. से अगर अपने मोबाइल फ़ोन पे आप कोई मल्टीमीडिया वीडियो देखते हैं 3 घंटे की, और वो आपको वही 3 घंटे की वीडियो बार बार रिपीटेडली उसी टाइम ड्यूरेशन में बैटरी टाइमिंग्स मिल रही हैं कांस्टेंट, जितनी बैटरी टाइमिंग्स आ जाएं फॉर द सेम एप्लीकेशन, वही बैटरी टाइमिंग्स कल परसों आपको मिलें, तो देन वी से कि जो बैटरी है मोबाइल फ़ोन की विच इट सेल्फ इज़ अ सिस्टम, सो वी से दैट सिस्टम इज़ टाइम इन वेरिएंट. लेकिन अगर बैटरी में मसला हो जाए, कभी वो 1 घंटे का चले, कभी वो 2 घंटे चले, कभी 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाए, देन वी से दैट इज़ टाइम वेराइंग. और एग्जाम्पल क्या है कि आर सी सर्किट्स इफ वैल्यूज ऑफ आर एंड सी आर कांस्टेंट, तो जो आर सी सर्किट आपको आज रिस्पांस देगा फॉर एनी गिवन इनपुट, वही आर सी सर्किट आपको कल भी वही रिस्पांस देता है, या परसों 1 दिन पहले उसने वही रिस्पांस दिया था, देन वी से दैट आर सी सर्किट इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. Similarly, automobile response on one day and then on the other day. कैसे अगर आपकी गाड़ी आज आप उसको ड्राइव करते हैं मोटरवे पे एंड इट गिव्स यू 10 किलोमीटर्स पर लीटर, और कल आप वही सफ़र दोबारा करते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में विद द सेम कंडीशंस, स्पीड भी वही है, मोटरवे भी वही है, वेदर कंडीशंस भी सेम है, तो आपको वही माइलेज मिले, तो देन वी से दैट योर कार और योर ऑटोमोबाइल इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. लेकिन अगर उसमें वेरिएशंस आए कि किसी दिन एक वैल्यू और किसी दिन दूसरी वैल्यू हो, देन वी से इट विल बी टाइम वेराइंग. It's also like your response to the same input at different times. कि अगर आप हर वक्त अच्छे मूड में हो तो then we say you are time in variant. लेकिन आप कभी अच्छे मूड में, कभी बुरे मूड में, कभी खुश हैं, कभी खफा हैं, then we say it is time variant. Now come back to general form. So if we say that x of n gives the output for a discrete time system as y of n, then if input is considered as x of n minus n naught, means this is the same input y x of n, but it is shifted by some amount n naught, then output should also be equal to y of n minus n naught. यहाँ पे दो चीजें बनती हैं कि सिस्टम को इनपुट दें, वो आउटपुट जनरेट करे y of n,
फिर आप उस आउटपुट को shift कर दें by the amount n naught. So we say this, or then the shifted output will be y of n minus n naught. Then to the same system first give a shifted input and then find its response. अगर आपके पास ये दोनों responses same हो, then we say that the system is time invariant. Similarly, for continuous time, if we say x of t gives the output y of t, then x of t minus t naught must give the output y of t minus t naught. Then the system is said to be time invariant. नाम से clear है कि जिसमें time के साथ variation ना आए, that will be a time invariant. जिस तरह हम अब मैं किसी से पूछे कोई भी इसका आंसर दे दे कि जो इंटरनेट कनेक्शंस है हमारे, ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है? वेरिएंट है क्यों वेरिएंट है? वेरिएंट है सर। क्यों सर। वेरिएंट है? एग्जैक्टली कि अगर आपसे आज 10 बजे ऑनलाइन हुए थे तो जो आपको इंटरनेट स्पीड मिली थी, अगर एग्जैक्टली हेलो। वही इंटरनेट स्पीड आपको रोजाना 10 बजे मिले, कल परसों या प्रीवियस दिनों में भी, देन वी कैन से इट इज टाइम इनवेरिएंट. लेकिन जनरली क्या हो रहा है कि आपके पास इंटरनेट स्पीड चेंज हो रही है, सो वी से इट इज टाइम वेरिएंट. यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, योर रिस्पॉन्स टू द सेम इनपुट एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक, आपको रोजाना कोई सुबह 10 बजे सलाम करे तो आप हमेशा से उसका वापस जवाब दें, तो वी से इट इज टाइम इनवेरिएंट. लेकिन अगर आप किसी वक्त रिस्पांस में आपका मूड ख़राब हो तो आप सलाम की जगह कोई और जवाब देने की बजाय कोई और गाली निकाल दें, कोई बदतमीजी कर दें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम वेरिएंट. So here consider, let's say, an example of compressor. Output equals to the compressed input. Call it as equation number 1. So यहाँ पे क्या है, if x1 of n is the input to a system, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, y1 which will be equal to x1 of 2n. सिस्टम क्या कर रहे हैं, उसको जो भी इनपुट देंगे it will be compressed, उसको हाफ कर देगा whatever it is to that system. Generally we say it is in terms of signals. So if x1 is the input, then output y1 will be equal to x1 of 2n. Similarly, if input is x2, then y2 of n equals to x2 of 2n. अब टाइम इनवेरिएंस की कंडीशन क्या है कि if x2 of n equals to x1 of n minus n naught, मीन्स इस केस में x2 of n और x1 of n में क्या फर्क होगा कि जो सेकेंड इनपुट है इट इज सिंपली द फर्स्ट इनपुट बट शिफ्टेड बाय द अमाउंट एंड नॉट ओनली. देन आउटपुट शुड बी सेम एज y2 of n शुड बी इक्वल टू y1 of n minus n naught. तो टाइम इनवेरिएंस का बेसिक आपके पास ये तीन लाइन, ये दो लाइनें. If x2 of n is equal to x1 of n minus n naught, then y2 must be equal to y1 of n minus n naught. अब इस एग्जांपल में we say from equation number 1 which is the system equation, तो y1 of n will be equal to x1 of 2n. Now if we replace n by n minus n naught, n minus n naught replace करने का मतलब क्या है कि जो आपके पास आउटपुट आई है y1 of n, इसको शिफ्ट कर दें by the amount n naught. So y1 of n minus n naught will be equal to x1 of 2 times n minus n naught, which is again equal to x1 of 2n minus 2n naught. So we call this as equation number 2. So we say replace n by n minus n naught. So y1 of n minus n naught equals to x1 of 2n minus n naught is x1 of 2n minus 2n naught. इसको equation number 2 कहें. ये आपको कैसे मिल रही है कि आप पहले इनपुट ले रहे हैं and it generates the output x1 of 2n. Then this output is simply shifted by the amount
n naught, and it gives you the equation number 2, which is y1 of n minus n naught. Now as we say that condition for time invariance is x2 of n equals to x1 of n minus n naught. तो यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें n को 2n से, तो x2 of 2n will be equal to x1 of 2n minus n naught, as we know that y2 of n equals to x2 of 2n, which is equal to x1 of 2n minus n naught. Call this as equation number 3. अब ज़रा से इसको समझ लें कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में फ़र्क क्या है. इक्वेशन नंबर 2 में आपको जो आउटपुट मिली है y1 ऑफ n, उसको शिफ्ट कर दिया आपने n नॉट से. इक्वेशन नंबर 3 में आपको जो आउटपुट मिल रही है दैट इज बेसिकली कि आपने पहले इनपुट को शिफ्ट किया है and then the shifted input is given to the system, and that generates the output y2 of n, which is x1 of 2n minus n naught. Now comparing equation number 2 and equation number 3, we say y2 of n is not equal to y1 of n minus n naught. So the above system, which is representing a compressor or downsampler, is a time वेरिएंट सिस्टम. इसके लिए अगर प्रीवियस क्लासेस में जाएं तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी विद रेफरेंस टू ट्रांसफॉर्मेशंस. दैट वाज टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल. उसमें हमने एक डेफिनेशन दी थी कि पहले कौन सा स्टेप करना है, दूसरा स्टेप कौन सा होगा और तीसरा स्टेप कौन सा होगा. फर्स्ट वाज शिफ्टिंग, देन वी से कंप्रेशन, स्केलिंग और रिवर्सल. सो वी से दैट कि अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो आउटपुट्स चेंज हो जाएंगी. तो यहाँ पे अगर आप सिस्टम को देखें तो वी से इट इज सिंपली अ कंप्रेशन. तो आप पहले सिग्नल को कंप्रेस करें और फिर जो आउटपुट मिले उसको शिफ्ट करें. दिस इज वन केस. अदर केस सेज कि जी पहले सिग्नल को शिफ्ट करें और फिर उसको कंप्रेस करें. So those two results will be different. So we say that compression is a not time variant system. Clear? किसी को इशू हो तो पूछ लें. ठीक है. अब सीक्वेंस में फर्क है ना कि आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें, या पहले ऐड करें और फिर मल्टीप्लाई करें. देन द रिजल्ट्स आर डिफरेंट. जिस तरह बदमाश रूल है BODMAS, कि अगर आप इस रूल को डिसोबे करेंगे तो आपके पास आउटपुट्स डिफरेंट आएंगी. ठीक है. तो इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कंप्रेशन, एक्सपेंशन, टाइम स्केलिंग एंड टाइम शिफ्टिंग. तो अगर आप इसके सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. टाइम इनवेरिएंट क्या कहता है कि अगर आप सीक्वेंस को चेंज भी कर दें और आउटपुट पे फर्क ना पड़े, देन द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट. लेकिन अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दें और सिस्टम के आउटपुट पे फर्क पड़े, देन वी से सिस्टम इज टाइम वेरिएंट. Similarly, other examples can be considered as y of n equals to n x of n. It is a time variant system. कि पहले सिस्टम को इनपुट दें, आउटपुट पे जो भी मिलेगा इट विल बी n टाइम्स द इनपुट. फिर उसको शिफ्ट कर दें. और दूसरे केस में क्या करें कि पहले इनपुट को शिफ्ट करें और फिर उस शिफ्टेड इनपुट को मल्टीप्लाई करें n से. The two outputs will be different, so we say system is time variant. Similarly, y of t is equal to t times x of t is also a time variant system. If we say output is equal to sine of x of t, this represents a time invariant system. ये जो example है ये book में solved है, इसको book में देख लें. Similarly, accumulator is a time invariant system.
Also, averaging system is time invariant system. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। वीडियो लेक्चर किसी ने देखा? यस सर। थोड़ा सा नहीं ना, पूरा देखना होता है ना। देखा है सर। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज पे आ जाएं पहले, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जब कोर्स कंप्लीट हो सक्सेसफुली, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन continuous time and discrete time signals and systems. तो होप सो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। देयर टाइप्स मींस continuous time discrete system and discrete time system, continuous time signals and discrete time signals. प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू सिस्टम्स के 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। कोई नाम बताएगा इन 6 प्रॉपर्टीज के? अबीरा मलिक। सर अभी इसी क्लास में रिवाइज की हैं। इन्वर्टेबल, सर मेमोरीलेस जी या सिस्टम विद मेमोरी, जी ये एक ही है। फिर उसके बाद इन्वर्टेबल एंड इन्वर्स सिस्टम है। जी उसके बाद सर कॉजालिटी है। जी उसके बाद स्टेबल सिस्टम है। उसके बाद लीनियर सिस्टम्स हैं। जी और सर उसके बाद आज जो पढ़ा टाइम वेरिएंस और टाइम इनवेरिएंट। ठीक है जी। मलिक सैफुल्ला आसिफ साहब हैं? यस सर। हैं, ठीक है। मुझे शक्लें तो याद नहीं है, नाम से ही पूछ रहा हूँ कि क्या पता कौन है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स कौन सी थी? सर ये जो अभी सर ये आपने अभी जो एक करवाई थी सर, ये वो जो आपने अभी 6 करवाई सर, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल सर। सर वो जो कनेक्शन थे सर, सीरीज और वो वाले सर। वो तो कनेक्शंस थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कनेक्शंस कौन कौन से पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं सीरीज है, पैरेलल है, फीडबैक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, सोए हुए हैं। आकिब साहब हैं? मोहम्मद आकिब निसार। यस यूनिट सर। जी। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स कौन सी हैं? सर ये थी टाइम शिफ्टिंग, डिले और स्केलिंग। प्रॉपर्टीज नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? जिस तरह अभी सिस्टम की आपने कहा कि 6 प्रॉपर्टीज हैं, सर सिग्नल्स की सर प्रॉपर्टीज? ये पीरियोडिक थे जी, हमारे पास। पीरियोडिक है, पीरियोडिक और इवन ऑड होते हैं हमारे पास। इवन ऑड। ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज इस कोर्स में हम कह सकते हैं कि हमने 2 ही पढ़ी हैं। तो इनफैक्ट थर्ड, इट इज एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। इज इट पीरियोडिक और अपीरियोडिक? इज इट इवन और ऑड? और और ये जो था परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल्स, तो बेसिक ऑपरेशंस फिर वही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग। अब C1 का क्या मतलब है यहाँ पे कि नॉलेज डोमेन है, कि आपके पास ये चीज़ें, इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? परफॉर्म टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ continuous time LTI systems using convolution, integral convolution sum, and also the impulse response and step response of the systems. अब मैं जरा लेक्चर वाइज स्केड्यूल में आ जाऊं।
प्लीज इसमें जरा पहले 8 लेक्चर ले लें, देख लें। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके प्लीज इसमें अगर आप ये लेक्चर वाइज देख लें 1 2 3 4 5 6 क्या था, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर सिस्टम विद एग्जांपल्स, तो ये आज हमने खत्म अभी कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 7 और ये 5th वीक चल रहा है। 5th वीक का मतलब है कि आज 10वां लेक्चर होना चाहिए था। सर सो कम अज कम 2 लेक्चर पीछे हैं जी। तो क्लास होती है, रेगुलर हो या ऑनलाइन हो, फर्क क्या है? नहीं, ऑनलाइन में तो आपके पास ज्यादा मटेरियल है, आपके पास लेक्चर स्लाइड्स हैं, आपके पास बुक है, आपके पास सॉल्यूशन मैनुअल है, आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स, आपको वीडियो लेक्चर्स कोई टीचर अपने बना के दे रहे हैं, कोई आपको मेरी तरह यूट्यूब से उठा के दे रहे हैं। तो मटेरियल आपके पास ज्यादा है, टाइम भी आपके पास ज्यादा है। ठीक है, नहीं टाइम बहुत ज्यादा है, मटेरियल भी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है। नो सर, सर टाइम नहीं होता। सर घर के भी काम। हाँ, नहीं तो सिग्नल्स के कोर्स के लिए 7 दिनों में आप 3 घंटे क्लास में बैठते हैं। हाँ, तो पढ़े लिखे बनना है ना, पढ़ना पढ़ना लिखना इतना आसान तो नहीं। ठीक है, सर घर में ये चीजें मुश्किल हो जाती है ना। नहीं आपसे ज्यादा मसला तो हमें हो रहा है। लेक्चर लेना तो बहुत आसान है, क्लास में आए बोर्ड पे लिखा और चले गए। तो बाय बुक तो आपका काम सिर्फ पढ़ना है ना, आपके और काम तो नहीं है। सर इधर छोड़ देते हैं ना। चले खैर, ये तो एक्सक्यूजेज हैं, कभी लाइट नहीं है, कभी नेट नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। ठीक है, तो हम कम से कम 2-3 लेक्चर पीछे हैं। सो होप सो आई विल अरेंज एक्स्ट्रा क्लास समवेयर ऑन सैटरडे। सर प्लीज ये नहीं हो सकता ना, हम कोर्स कवर शायद ना कर सके क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा स्लो है ना। सिस्टम क्यों स्लो है? आप सोए रहते हैं इसलिए स्लो है। सर बस यही बात है क्योंकि मतलब जिस चीज में वो फंस जाता है ना बंदा, फिर समझ भी नहीं आती और वो बंदा सो जाता है फिर तो। नहीं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलता। सर वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जब मतलब सोल्यूशन भी मिल जाए उससे भी समझना है ना, तो मुश्किल हो जाता है ना। फिर इस तरह ऑनलाइन मुझे रिक्वेस्ट कर दिया करें कि सर ऑनलाइन क्लास में है, ये क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करना है। सर वो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे तो आप सेंड करते हैं, जो कुछ आपने सेंड किया उसको अभी की क्लास में डिस्कस कर लेंगे ना। अब इस तरह तो मुश्किल है कि मैं भी आपको मतलब लिख के और फिर आपको इमेज भेज दूँ। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा नहीं लगता ना। तो अभी आपके जो 2-3 क्वेश्चन थे वो इसी क्लास में देख लेंगे दोबारा एंड में। ठीक है सर। चलो कि कम बैक टू दिस थिंग, चैप्टर नंबर 2 क्या है? दैट इज लेक्चर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू LTI systems, discrete time LTI systems, impulse response and convolution sum। ठीक है, फिर अगर आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ आ जाता है आज का अभी वाला, तो फिर ये चीज रिपीट होगी फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम LTI systems, impulse response and convolution integral। यहाँ पे कन्वोल्यूशन सम है और यहाँ पे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है। दोनों में से फर्क क्या है कि एक में आपको समेशन आनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज, एंड सेकंड वन सेज हाउ टू इंटीग्रेट एनी गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये होप्स आज की क्लास में हो जाएंगे। देन वी से प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम्स। तो एक तो है दो बेसिक टाइप से कैटेगरीज हैं प्रॉपर्टीज में, एक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आप मैथ्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दोबारा रिपीट होगा। और फिर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं कि LTI सिस्टम, वी से अ सिस्टम व्हिच इज ऑलरेडी लीनियर, व्हिच इज आल्सो टाइम
वेरिएंट। अब ये बताएं कि जो LTI सिस्टम है, इज इट विद मेमोरी और विदाउट मेमोरी? whether the given LTI system is invertible or non-invertible. Is this LTI system causal or non-causal? Is this LTI system stable or unstable? ठीक। और फिर जो हमारे कोर्स का नेक्स्ट फोकस होगा, दैट इज द लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, और डिस्क्रीट के लिए लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस। जो बेसिक पर्पस है हमारा कि systems which are represented by the differential equations and systems which are represented by the discrete time systems which are represented by difference equations, सारा काम हमारा इन दो बेसिक इक्वेशंस के साथ है थ्रू आउट द कोर्स। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कम बैक टू टुडेज लेक्चर, there is LTI systems. LTI stands for लीनियर टाइम invariant। linear time invariant system। वो सिस्टम जो कि ऑलरेडी लीनियर है, means which will satisfy the superposition property as well as scaling property, and also time invariant, कि means input को shift करेंगे किसी भी amount से, the output will be shifted by the same amount। अब इस चैप्टर में बेसिक ये चार टॉपिक्स हैं: discrete time LTI system, impulse response, convolution sum; continuous time LTI system, impulse response of LTI system and convolution integral; then properties of LTI systems and step response of LTI systems। अब फर्स्ट टर्म क्या है? discrete time LTI system, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड कन्वोल्यूशन सम। अब बुक को ओपन करें तो बुक में पहला इसका नाम चलता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इन टर्म्स ऑफ यूनिट इम्पल्सेस। तो डेफिनेशन सिंपली क्या बनती है? एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल्ड एंड शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स। तो अगर आप इस इमेज पे देख लें तो आपको सैंपल नजर आ रहा है एट n इज इक्वल टू -2, एट n इज इक्वल टू -1 0 1 2 एंड 3। 6 सैंपल्स हैं इसमें विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। तो अगर इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो x ऑफ n विल बी इक्वल टू, ये पहली इंपल्स क्या है? इसकी लोकेशन है एट n इज इक्वल टू -2 with an amplitude equal to 1 unit। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एज अ शिफ्टेड इम्पल्स। सो दिस विल बी 1 टाइम्स डेल्टा ऑफ n प्लस 2, ठीक है, बिकॉज इट इज शिफ्टेड लेफ्ट साइड, एडवांस्ड इम्पल्स है। सो वी से इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 1 है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ऑफ n plus 2, and there is another impulse with amplitude 1 और उसकी लोकेशन क्या होगी? डेल्टा ऑफ n plus 1 plus a third impulse with n is equal to 0 and amplitude 1, so we say it is 1 times delta of n। then ये impulse क्या है? delta of n minus 1 with an amplitude 2 units। पांचवा सैंपल नंबर is at n is equal to 2 with an amplitude 3, so it is defined as 3 times delta of n minus 2, and the last one is again plus 3 amplitude और उसकी लोकेशन क्या है? delta of n minus 3, so we call this as equation number 1। इसको मैं फर्दर अगर आप देखें फ्रॉम द फिगर अगेन, x of -2 का क्या मतलब होगा कि फंक्शन की वैल्यू एट n इज इक्वल टू -2 which in this case is 1। Similarly x of -1 means the value of the function at n is equal to
-1 एंड जो कि इस फंक्शन गिवन फंक्शन में 1 है, then again x of 2 equals to 3 from the figure, also x of 3 equals to 3. इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दूं तो x of n will be equal to x of -2 multiplied by delta of n minus into -2. यहाँ पे क्या है, n plus 2 है, प्लस को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू -2. Similarly, plus x of -1 into delta of n minus into -1 plus x of 0 delta of n minus 0 plus x of 1 delta of n minus 1 plus x of 2 delta of n minus 2 plus x of 3 into delta of n minus 3. Again, the above equation can be written in the सर ये रिपीट कर दे. ये equation पूरी ये सर ये इक्वेशन कैसे बनी है ये वैल्यूज पुट करके? इस फंक्शन को देख लेना, पहला इम्पल्स कहाँ पे है, at n is equal to -2. नो सर ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना जिसमें वैल्यूज पुट किए हैं ये वाली इक्वेशन 1 के. यस सर. ठीक है. अब देखें 1 क्या चीज है, ये वैल्यू है कहाँ पे, एट n is equal to -2. ठीक, तो x of -2 is equal to 1 from this figure. -1 equals to 1 from the same figure equals to 1. X of 1 equals to 2. X of 2 equals to 3. मतलब फंक्शन की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 पे क्या है, 3 है. फंक्शन की वैल्यू n इज इक्वल टू 3 पे क्या है, 3. So this is x of 3 is equal to 3. Clear? यस सर. क्लियर है, ठीक है. फिर मैं अब इसी सर जो इक्वेशन में इक्वेशन से नंबर 1 को भी इक्वेशन सर जो नंबर 1 इक्वेशंस है में ना, इस वैल्यू फंक्शन डालनी को है ना. मैंने लिखा इक्वेशन की फॉर्म में, यस यहाँ सर. पे वैल्यूज डाल दी. अब यहाँ पे 1 है तो 1 की मैं जगह क्या लिख रहा हूँ, x ऑफ -2. थोड़ी मैं इसको बड़ा कर दूं साइज में, ठीक है. तो ये वही फंक्शन है x ऑफ n जो कि इक्वेशन नंबर 1 है. तो यहाँ पे 1 था, 1 क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन एट n इज इक्वल टू -2. तो फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x ऑफ n से. ठीक, so I say x of -2 into डेल्टा ऑफ n प्लस 2. n प्लस 2 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ डेल्टा ऑफ n माइनस इंटू -2 मीन्स के फंक्शन की वैल्यू एट n इज इक्वल टू -2. तो वो तो एम्पलीट्यूड होगा x ऑफ -2. उसकी लोकेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर इट इज डेल्टा ऑफ n प्लस 2 और वी से डेल्टा ऑफ n माइनस -2. मीन्स अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू -2. सिमिलरली x ऑफ -1 का मतलब क्या है, फंक्शन का एम्पलीट्यूड कहां पर, n इज इक्वल टू -1. सो वी से दिस इज एम्पलीट्यूड इज x ऑफ -1 और लोकेशन क्या होगी, डेल्टा ऑफ n माइनस इंटू -1. ठीक, डिस्क्रीट सिग्नल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन का एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे क्या है. तो x of 0 will be the amplitude of the signal and delta of n minus 0 represents its location. Similarly, x of 1 is amplitude and delta of n minus 1 is its location. Generally, x of 2 होगा represented by a sample plus the last term x minus 3. Clear? यस सर. कोई है इसमें एक्सक्यूज क्लियर है कि नहीं? हेलो
सर आ गया सर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको क्लियर Yes, करना sir, जरूरी clear है, है, आगे sir. यही चीज रिपीट होगी। फाइन। अब नाउ द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज कंपैक्ट फॉर्म में, क्योंकि समेशन का साइन यूज हो रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, सो फॉर दैट वी यूज द टर्म साइन समेशन। अब समेशन की लिमिट्स क्या होंगी? -2 से लेकर the last term is at 3. So generally we said is k from -2 to 3. अब b क्या x of -2 है, फिर x of -1 है, फिर x of 0 है, so we represented by x of k, and then it is delta of n minus -2, delta of n minus -1, delta of n, delta of n minus 1, delta of n minus 2, 3, so we say it is delta of n minus k. तो अब ये जो इक्वेशन ओपन फॉर्म में लिखी हुई है और इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है समेशन के फॉर्म में, दीज इक्वेशंस आर सेम। अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन तो इसके लिए, इस गिवन इमेज के लिए। अब अगर इसी को फर्दर जनरलाइज्ड फॉर्म में ले जाएं तो वी से x ऑफ n इज समेशन k फ्रॉम -infinity टू +infinity x of k into delta of n minus k. तो ये क्या इक्वेशन है? द above इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ any discrete time signal as a linear combination of scaled and shifted unit impulse signals. Linear combination means summation sign. Scaled का मतलब क्या है? They are scaled by the value x of k. मीन्स इमेज में अगर आप स्केलर देख लें तो क्या है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स 1 है पहले 3 सैंपल्स के, चौथे सैंपल का एम्पलीट्यूड 2 है, बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्केल यूनिट इम्पल्स। थर्ड केस में इट इज 3, so 3 represents the scalar value, amplifying value. Also the last sample we say its scalar value is also 3. तो सम रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, x of k represents scalar value, and delta of n minus k represents the shifted impulses. So any discrete time signal can be represented as a linear combination of scaled and shifted unit impulse signals. अब इक्वेशन फंक्शन कोई भी हो, लेट्स से इट्स अ फंक्शन f of n, इंस्टेड ऑफ x of n आपके पास डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है f of n, so f of n will be a summation f of k into delta of n minus k. Similarly for a signal y of n, it will be y of k into delta of n minus k. यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे जाऊं। सर जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें y ऑफ k जो है वो तो एम्पलीट्यूड है और सिग्मा n माइनस k जो है वो मतलब शिफ्टेड सिग्नल की लोकेशन है, मतलब यहाँ पर जो है सिग्नल है, तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों लिया? ये तो सिग्मा n माइनस k पे इसकी वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड ये आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? नहीं, y ऑफ इस फंक्शन में देख लेना। लेट्स से इस आखिरी सैंपल को देखें, आखिरी सैंपल का एम्पलीट्यूड कितना है? 3 सर। 3 किस लोकेशन पे है? 3 पे ही। तो सिर्फ इस सैंपल को अगर रिप्रेजेंट करना हो, सिर्फ इस एक इम्पल्स को, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा फंक्शन से। सिग्मा फंक्शन से। तो सिग्मा फंक्शन तो आइडियली क्या है? डेल्टा ऑफ n इक्वल्स टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 0। यस सर। ठीक, तो अब ये कौन सा इम्पल्स है? शिफ्टेड इम्पल्स है। यस सर। कितने पॉइंट शिफ्टेड? 3 पॉइंट्स। 3 यूनिट्स। स्केल्ड कितना? 3। अब अगर आप इन पहले तीनों को देखें ना तो सब में एम्पलीट्यूड 1 है, तो में स्केलर की वैल्यू 1 है लेकिन शिफ्टेड इम्पल्सेस हैं।
ठीक। Sir. इस फोर्थ एग्जांपल में एम्पलीट्यूड 2 है विच इज अ स्केलर वैल्यू। सिमिलरली बाकी दोनों में 3 है। सो शॉर्टली वी से दैट every discrete time signal चाहे वो कोई भी हो, so this will be x of k which is a scalar value multiplied by delta of n minus k which is a shifted impulse। clear? सही। तो अब फंक्शन f of n हो तो then it is summation f of k delta of n minus k। फंक्शन y of n से रिप्रेजेंट करेंगे तो then it will be y of k का मतलब क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू एट n इज इक्वल टू k, ठीक है, इनटू डेल्टा ऑफ n माइनस k। फंक्शन अगर x ऑफ n होगा तो देन इट इज समेशन x ऑफ k। से इट इज z ऑफ n then it will be summation z of k into delta of n minus k। clear? Yes sir। मुझे एक सेकंड पानी दे, मेरे पानी पीने दे, मेरा गला खुश्क हो रहा है।